پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 روٹیاں لے کر آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسی کہلائے گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے باپ بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستو، ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہے۔ پیارے دوستو، ان عورتوں کا اصلی مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت اور مہنگے لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وہاں آئیں گی تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں اور یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس ہی بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز ہوئی، انہوں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مجھے کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ عورتیں
किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहाँ से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास दे आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से पाकीज़ा लिबास लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अदब से इजाज़त मांगी, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। कहा, आ जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। यह पाकीज़ा लिबास पहनकर वो यहूदियों की दावत में शिरकत करेंगी। यही अल्लाह पाक की रज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वो अपने घरों में तकब्बुर कर रही थी। हर औरत ने एक से बढ़कर एक महंगे और खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखा सकें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस महफ़िल में तशरीफ़ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरत रश्क करने लगी। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि महफ़िल में वैसा लिबास किसी औरत ने नहीं पहना हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक जगह पर बैठ गईं, लेकिन वहां मौजूद हर औरत की नज़र उनके लिबास पर थी। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गईं और उनके लिबास को देखने लगी, जो उनकी सोच और ख्याल में भी नहीं था। वो औरतें पूछने लगी, ए फातिमा, ये इतना हसीन लिबास तुमने कहाँ से लिया? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने ये लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ए फातिमा, तुम्हारे अब्बू ने इतना हसीन लिबास कहाँ से लिया है? इस पर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, उन्हें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज़्यादा हैरान हुईं। उन्होंने फिर पूछा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने दिया है। मेरे रब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास देकर मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वो दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिबास को छूकर पकड़कर देखने लगी। वो कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वो हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये नज़ारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक की रोशनी उतर गई और वो सब औरतें फ़ौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आईं और सब ने मिलकर कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की एक इफ्तारी का बहुत प्यारा वाक़या है। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शदीद बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने भी रोज़े की नीयत कर ली। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहजादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हों फरमाने लगे, ए नाना जान, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें। ये सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादों के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोज़े की इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों कुछ आटा लेकर तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पीस कर 5 रोटियाँ तैयार कीं। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह
अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ़ लेके आ गए। पीछे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकारी दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरख्वान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में तकसीम कर दी गईं। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया, इतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज़ लगाई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी लो और इस मुस्तहिक को दे आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दूँगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी फरमाया, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 5 रोटियां उस फ़कीर को दे दी। सब ने सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और फिर से रोज़े की नीयत कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर से मजदूरी के लिए बाहर चले गए। शाम को इतना जौ लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सकी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरख्वान बिछाया। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। इफ्तार का वक्त करीब आया। दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूँगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, बाबा जान, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूँगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सब ने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से इफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। आप सब ने इरादा किया कि कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पिया और रोज़े की नीयत कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने जौ लेके आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकीं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरख्वान सजाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और सब दस्तरख्वान पर बैठे। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाज़े पर फिर से आवाज़ आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूँगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी कैदी को दे दूँगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस अहले बैत की ये शान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और इफ्तारी सिर्फ पानी से की और ख़ुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम इन मुक़द्दस हस्तियों की पैरवी करें, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और इफ्तारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।